Canto 1, Chapter 3, Krishna is the source of all incarnation, text 4. So let us study. Pashyanti ado rupam bhadra chakshusha sahasra podaro bhujananam tambhutam sahasramurdha shavanakshi nashikam sahasra mauli ambra kundalolosat Pashyanti yadurupam madhabrachakshusha sahasrapodaro bhujanananda bhutam sahasramurdha shravanakshi nasikam sahasra mauli ambara kandololasat Pashyanti yadurupam abhadrachakshusha sahasrapodaro bhujananda bhutam Sahasramurdha Shravanakshi Nashikam Sahasramoli Ambara Kundalo Lasat. Purya Mataji, read the shloka. Pashyanti yadorupam adabharaschaksusha saharasrapadro bhujan adbhutam sahasramudra shravansaki nasikam sahasramauli ambara kundalo satta. Okay. Word to word. तुम्हारे पास श्लोका है प्रिय? Do you have shloka with you? Hare Krishna. Okay. Word to word meaning. Pashyanti, see, Adaha, the form of the Purusha, Rupam, form, Adhabra, perfect, Chakshusha, by the eyes, Sahasrapada, thousands of legs, Uru, thighs, Bhuj Anana, hands and faces, Adbhutam, wonderful, Sahasra, thousands of, Muradha, heads, Shravana, ears, Akshi, eyes, Nashikam, noses, Sahasra, thousands, Mauli, garland, Ambara, dresses, Kundala, earrings, Ulasat, all glowing. Translation and purport by Srila Prabhupada, Jai Prabhupada. The devotees with their perfect eyes see the transcendental form of the Purusha who has thousands of legs, thighs, arms, and faces, all extraordinary. In that body, there are thousands of heads, ears, eyes, and noses. They are decorated with thousands of helmets and glowing earrings and adorned with garland. अब ये जो रूप की बात हो रही है, this is a विराट रूप, ठीक है? जहाँ पे हम लोगों ने इसको भगवत गीता के 11th चैप्टर में भी we will be studying it. That is a विराट रूप, जो भी पिछले चैप्टर में, पिछले श्लोक में भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत देखा था. विराट रूप is a material form of Lord, that is kind of a impersonal. मतलब हम लोग we can't perceive the form how it looks like. अब उस form में there are thousands of legs, thousands of thighs, arms, faces, thousands of ears, eyes, noses, heads. We can't even imagine कि कितने सिर हैं, कितने आंखें हैं. We can't imagine, you know. So यहाँ पे क्या लिखा था? Devotees with their perfect eyes see the transcendental form of the Purusha. ठीक है? Who has thousands of legs, thighs, arms and faces. तो यहाँ पे जो बात हो रही है, that is of a विराट रूप. क्या बोला कि उसके लिए भी देखो, विराट रूप इज अ मटेरियल फॉर्म ऑफ लॉर्ड. ठीक है, विराट रूप इज अ मटेरियल फॉर्म ऑफ लॉर्ड. उसके लिए भी वन नीड अ परफेक्ट आई, दिव्य चक्षु. अर्जुन, जब भगवान ने अपने विराट रूप दिखाया था, सो अर्जुन को दिव्य चक्षु दिए थे भगवान ने कि ओके यू हैव द डिवाइन आईज, देन यू कैन सी. इवन टू परसीव लॉर्ड्स मटेरियल फॉर्म वन नीड टू हैव द डिवाइन आईज. व्हाट टू से ऑफ हिज ट्रांसेंडेंटल फॉर्म. तो क्या उनका ट्रांसेंडेंटल रूप हम ऐसे ही देख सकते हैं अपनी इम्परफेक्ट सेंसेस से, आई से? नो. We are conditioned, we have the cataract, you know, we have the conditioning, we can't see the Lord directly through our imperfect eyes. So अगर material form देखने के लिए भी perfect eyes चाहिए, so what to say of seeing the transcendental form of Lord? We need the divine eyes. ठीक है? We'll read the purport, then I'll explain point by point. With our present materialized senses, we cannot perceive anything of the transcendental Lord. Our present senses are to be rectified by the process of devotional service, and then the Lord Himself become revealed to us. So, देखो, we have to rectified by the process of devotional service. We cannot perceive Lord through our material senses. So, हमें क्या बताया जाता है कि ओनली बाय द डिवोशनल सर्विस वी कैन प्यूरिफाई आवर विजन. कि हम लोग सिर्फ अपनी क्या है भक्ति करके डिवोशनल प्रोसेस से ही वी कैन प्यूरिफाई आवर सेंसेस एंड कैन परसीव द लॉर्ड. द लॉर्ड बिकम्स रिवील्ड टू अस व्हेन वी आर प्योर. अब जैसे दुर्योधन थे, दुर्योधन के सामने भगवान कितने समय तक रहे हैं? ही हैज सीन लॉर्ड मेनी टाइम्स, एंड भगवान ने अपना विराट रूप, पार्शियल रूप दिखाया था, नॉट द फुल विराट रूप. ही शो व्हेन ही वेंट टू दुर्योधन एज अ शांति दूत, तो वहां पे भी उन्होंने दिखाया था अपना. मगर
दुर्योधन थोड़ी देर के लिए लोग उनको लगा, जब उन्हें बंदी बनाने का प्रयास किया तो भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया था, मगर पूरा वाला नहीं, पार्शियल दिखाया था। तो दुर्योधन को थोड़ी देर के लगा ही माइट बी सम मिस्टेक, कोई मिस्टेक योगी तो नहीं है, लाइक ही वाज हैविंग सम पावर थोड़े टाइम के लिए, मगर स्टिल ही वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड ही इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। वो तब भी नहीं समझ पाया। तो थ्रू आवर मटेरियल आईज वी कैन नॉट परसीव लॉर्ड, एंड लॉर्ड डजंट रिवील टू अस, इवन लॉर्ड हैज दैट थिंग टू हाइड हिमसेल्फ। तो until one is pure we cannot perceive lord, ठीक है। We require the purified senses or purified vision, and it can only happen through the devotional service. As there is a shloka in the Brahma Samhita, what was that? Premanjana charita bhakti vilochanena santa sadaiva hridayeshu vilokayanti yam shyama sundaram achinta guna swarupam govindamadi purusham tamaham bhajami गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। क्या बोला है? The Lord is always visible to the devotees whose eyes have been anointed with the tinge of devotional service। कि कौन से भक्त भगवान को देख पाते हैं हमेशा? प्रेम अंजना, जिनकी आंखें प्रेम अंजना से भरी हैं, that is whose eyes are anointed with tinge of devotional service। So जो devotional service में engage है, they can only see the Lord, though then they get purified, then they can see, otherwise there is no means one can see the Lord, ठीक है। आगे यहाँ लिखा है, in the Bhagavad Gita it is confirmed that the transcendental Lord can be perceived only by pure devotional service। The Lord can be perceived only by pure devotional service, no other means। बाकी और किसी चीज से आप भगवान को नहीं perceive कर पाओगे। So it is confirmed in the Vedas that only devotional service can lead one to the side of the Lord, and that only devotional सर्विस कैन रिवील हिम, कि हम लोग सिर्फ सेवा करके ही भगवान की साइड हो सकते हैं, और भगवान हमें सेवा करने से ही दिख सकते हैं, लाइक ही कैन बी कम टू आवर विजन और वी कैन बी रिवील्ड टू अस, ठीक है। सो ओनली बाय दैट प्रोसेस वी कैन हैव, ओनली बाय डिवोशनल सर्विस, देयर आर नो अदर वे, ठीक है। सो रेंडरिंग सर्विस टू द लॉर्ड वी कैन बी लाइक getting the favor of the Lord, becoming favorite of the Lord, so in that sense, अब जैसे that is called obedient child, ठीक है। सो भगवान क्या कहते हैं भगवत गीता में? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा, कि मेरे को शरणागत करो। अब शरणागत कैसे करेंगे? डिवोशनल सर्विस के थ्रू ना, by rendering the services to the Lord। What is our constitutional position? Our constitutional position is of a servant। हमारी constitutional position क्या है? एक दास की है, और दास का क्या कार्य है? मालिक की सेवा करना। So when we are into that service mode, into the devotional service, then only। और बाद में कहीं पे भी अपनी किसी भी जो भी किताबें हैं, जो भी ट्रांसलेशन पर प्रपाद ने दी है, कहीं पे भी डिवोशन नहीं लिखा अकेला। He has all the time, every time he mentioned devotional service। So only by devotional service we can perceive Lord, or he can be manifested in our heart also as a Paramatma। We can be in touch with him, so that's how। So otherwise it's very difficult, that's why we chant every day, 16 rounds or whatever number of rounds we chant। So that's how we make connection with the super soul Paramatma, we try to connect with him by dialing the number 108। So like that we chant, we call out to him and we connect with him, and that we can have his proper guidance। Krishna says, अब देखो, आप कोई बोल सकते हैं कि माता जी प्रभु जी हम तो बुद्धिहीन हैं, पता नहीं है, बुद्धि नहीं है, गुणों के अधीन रहते हैं, हमें नहीं पता किस समय किस काल परिस्थिति में क्या करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। ऑब्वियसली वी डोंट नो, because we are under the modes, our intelligence is not that strong or purified, और मन मलिन है, तो we can be into the wrong decisions, we can be into the wrong things। So when one is engaged in devotional service, Krishna says in Bhagavad Gita 10.10, what he says, तेषां सततं युक्तानां भजतं प्रीतिपूर्वकं दामि बुद्धि योगं तम ये नमः उपयन्ति ते। One who constantly engage in my devotional service, I give them the intelligence how to come to me। So जो भक्ति में सेवा में लगते हैं, डिवोशनल सर्विस में, भगवान उनको इंटेलिजेंस देते हैं, विदिन फ्रॉम विदिन ही गाइड देम हाउ टू कम। In 10.8 and 10.9 in the purport, Prabhupada has said, wait, maybe I will read it out some other time। Okay, so वहां पे भी प्रभुपाद ने लिखा है, मतलब मेंशन किया है कि इट्स कृष्णा फ्रॉम विद इन टेक चार्ज। कृष्णा आप अंदर से चार्ज लेते हैं भक्त का। मे बी आई कैन रीड इट आउट टू ऑल ऑफ यू। लेट मी सी माय नोट्स, इफ आई फाउंड आई विल। ये यहाँ पे था, इफ वन इज सो कंडीशन वी कैन नॉट प्रे कैन। ओके, तो कोई लिखता है कि ओके, सो शुड
कोई बोले कि if our intelligence is gone, then what to do? We don't know how to pray, how to beg to Krishna. In that stage, we ourselves are not very sincere. उस केस में तो हम खुद ही sincere नहीं होते. There is no way, there is no hope. Krishna consciousness is full of transcendental hope. It is nothing like I am so useless. There is no for me. Prabhupada said in the purport of 10.10 and 10.11, he says, a person may have a bona fide spiritual master and may be attached to a spiritual organization, but still if he is not intelligent enough to make progress, if he is sincere, the Krishna from within gives him instruction so that he may ultimately come to him without difficulty. So Krishna अंदर से खुद उनको instruction देखते हैं, guide करते हैं. Two things required if he is sincere and engage in devotional service. तो दो चीजें चाहिए क्या? पहले तो sincerity और दूसरा engagement in devotional service. Then from Krishna within guide us and be manifested there and can help us. You know, Krishna will come in inside and will start doing his work. There is hope you will get Krishna's mercy. So Krishna khud hriday mein manifest okay, he will guide us from within. But for that we need to have the sincerity and need to have the engagement in devotional service. Then the Lord will be revealed to us and then we can have the proper guidance. Okay. So okay, I have already mentioned this point. In the Brahma Samhita also it is said that the Lord is always visible to the devotees whose eyes have been anointed with the tinge of devotional service. So we have to take information of transcendental form of the Lord from persons who have actually seen him with perfect eyes smeared with devotional service. So हमें भगवान के जो transcendental रूप है, form है, उसका ज्ञान कहाँ से लेना चाहिए? We have to take it from the person who has seen him. ऐसे तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञाननम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः. Jnaninas who has seen the Tattvadarshina, that is a pure devotee of Krishna. We have to render service to them, inquire submissive from them, and then from there, by their guidance, we can know the Lord and can understand the Lord and can see the Lord. Under by their guidance, as Krishna says, because they are Tattvadarshi. They are Tattvadarshi means they know the Supreme Lord, they have seen the Lord. So they are the pure devotees. We have to be under the guidance of pure devotees, then we can understand the Lord and can see him. Okay. Then it says, so we have to take information from the form of the Lord from persons who have actually seen him with perfect eyes, smeared with devotional service. That is a pure devotee of Lord. That is spiritual master, we can say. In the material world also, we do not always see things with our own eyes. We sometimes see through the experience of those who have actually seen or done things. अब जैसे भौतिक जगत में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं. अब कोई आपको बोले कि अमेरिका ऐसा दिखता है, ऐसा है. अब हम तो कभी गए नहीं अमेरिका में, हमें क्या पता कि वहाँ क्या होता है, क्या नहीं होता है. ठीक है, तो हम तो वही मैप ही देखा होगा कि अच्छा यहाँ किसी कोने में एक देश अमेरिका भी है. अब हमें क्या पता वहाँ क्या होता है, क्या नहीं होता. अब जो व्यक्ति वहाँ रहता है, ठीक है, जिसने वहाँ पे स्टे किया है, जो रहता है, अगर वो हमें उन चीजों के बारे में बताए, फिर हम समझ सकते हैं अच्छा अच्छा वहाँ पे ऐसे रूल्स होते हैं, अच्छा ये होता है वहाँ पे. सो देन वी कैन अंडरस्टैंड, इजंट इट? द पर्सन हु हैज सीन. अब जिसने देखा है तो वो हमें बताएगा तो पता चलेगा. आप यहीं पे ही लगा लो, आप भी अपने गांव, अपने ही शहर में कई ऐसी जगह आप नहीं गए होंगे, ठीक है, तो कोई अगर आपका कोई मित्र गया होगा तो वो आपको बताया अच्छा उस जगह में तो ऐसा है, ऐसा ऐसा तुम्हें मिलेगा. अब हमें तो पता नहीं ना, हम पहली बार जा रहे हैं तो हमें नहीं पता. तो व्यक्ति जो गया है अगर वो हमें इन्फॉर्मेशन दे दे, then becomes easier because he has seen the things, then it becomes easier to go the things and understand, है ना. तो उसी प्रकार से, ठीक है. अब जैसे हम अपने घर पे ही किसी को बुलाते हैं, अब किसी को एड्रेस तो पता नहीं, ठीक है, तो कोई बोलेगा भाई कहाँ है आपका घर, तो हम बताएंगे अच्छा देखो, क्योंकि हमें रास्ता पता है. तो वो बोलेगा आप, हम पूछते हैं आप कहाँ पे खड़े हो, तो हमें एग्जैक्ट पॉइंट पता चलता है, तो हमें पता कि अच्छा ये वो वहां से है, तो यहाँ से रास्ते कैसे मेरे घर तक पहुंचना है, तो हम गाइड कर पाते हैं क्योंकि हमने देखा है, हमें पता है, सामने वाले को तो नहीं पता. तो सिमिलरली the certain things we have not seen in the material world, there are so many things we have not seen. ये तो normal example I'm giving. So बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमें नहीं पता है या हमने नहीं देखी है, तो जो चीजें जिन्होंने देखी है, एक्सपेरिमेंट किए, प्रूफ किए, देखा है, तो उनसे हम जब सुनते हैं, एक्सपीरियंस देखते हैं, तो हमें उन चीजों का ज्यादा पता चलता है. तो सिमिलर वे अप्लाइज इन द स्पिरिचुअल थिंग्स. ठीक है, वी हैव नॉट सीन द लॉर्ड, हाउ टू परसीव हिम हमें नहीं पता, तो जिन्होंने देखा है, जो तत्वदर्शी हैं, उनके ज्ञान में जब हम आते हैं, अधीन आते हैं, then we can understand what is the matter. ठीक है. So it says, if that is the process of experiencing a mundane object, it is more perfectly applicable in matter of transcendental. Okay. So only with patience and perseverance can we realize the transcendental subject matter regarding the absolute truth and his different forms. He is formless to the neophyte, but he is transcendental form to the expert servitor. ठीक है. So जब हम धैर्य रखते हैं, पेशेंस रखेंगे, अपनी प्रैक्टिसेस करते जाएंगे, आदेशों का पालन करेंगे जैसे अथॉरिटी से आते हैं, देन वी कैन अंडरस्टैंड द एब्सोल्यूट ट्रूथ एंड हिज डिफरेंट फॉर्म्स. तो हम जान पाएंगे. भगवान भगवद गीता में कहते हैं, जन्म कर्मा चामे दिव्यम
one who understand my appearance and disappearance, that person can never come back again to the material world. मगर उस चीज को जानना समझना इतना आसान नहीं है ना कि भगवान कब कहाँ प्रकट हो रहे कैसे आ रहे हैं. We don't understand, but one who has seen the truth, if he tell us, then we can have the knowledge, isn't it? So we have to hear from the persons, we have those who had such experiences. ठीक है. फॉर नए भक्त के लिए तो लॉर्ड इज लाइक अ फॉर्मलेस, जैसे विराट रूप, अच्छा ये है तो काइंड ऑफ. बट वन हु आर एक्सपर्ट सर्वाइटर्स, दोज आर एडवांस, फॉर देम दे नो व्हाट इज अ ट्रांसेंडेंटल फॉर्म ऑफ लॉर्ड. अब हमें तो पता नहीं ना ट्रांसेंडेंटल फॉर्म क्या है भगवान का, वी डोंट अंडरस्टैंड. हमारे लिए कई लोगों के लिए तो विग्रह भी इज लाइक अ आइडल, but its vigraha is contained. Vigraha, Lord has taken the shelter in the very kindly taken the form of a vigraha that we can render some service, can have his darshans. So ये सिर्फ जो भक्त थोड़ा एडवांस करते हैं भक्ति में, they can only understand. Okay, so we'll move to the next verse. तो इस वर्स में इतना. इस वर्स में किसी को कुछ कहना है या कुछ कमेंट है or something not understood? Yes, any comment or question for this verse? No, Mataji. No questions? Okay, it's clear ना, समझ में आ रहा है? Okay, Yes. so we'll be moving to the next verse. This is इतान्नान्वा तरहन्नाम निधानम बीजम आव्ययम यस्य मासं सेन सृज्यन्ते देवतीर्यन नरादया. नविता श्लोका पढ़ो. You didn't read the first one. ये वाला पढ़ो. हरे कृष्णा. Navita, I'm audible to you? Are you there? श्लोका पढ़ो. I think you have the network problem. Okay, no problem. Translation and purport by Ananavantaram Nidanam. Okay. Translation and purport by Prabhupada. This form, the second manifestation of the Purusha, is the source and indestructible seed of multifarious incarnation within the universe. From the particles and portions of this form, different living entities like demigods, men, and others are created. तो अभी ये और भी आगे डिस्कशन हो रही है ना. The second manifestation of the Purusha, that is Garbhodakshaya Vishnu, is the source and indestructible seed of multivarious incarnations within the universe. From the particles and portions of this form, different living entity like demigod, man, others are created. तो अभी ये कहा क्या बात हो रही है? We'll read in the purport. क्या बताया जा रहा है? The Purusha, after creating innumerable universes in the Mahatattva, entered in each of them as second Purusha, Garbhodakshaya Vishnu. हमने ने 3 पुरुषों की बात की थी. कौन सा? करुणोदक्षय विष्णु, that is महाविष्णु. ठीक है, जो यूनिवर्स के बाहर रहते हैं. ठीक है, वो बाहर, क्योंकि उनकी बॉडी से यूनिवर्सेस निकलते हैं ना, तो यूनिवर्स के अंदर कैसे हो सकते हैं? तो ही इज आउटसाइड द यूनिवर्स हु लाइज ऑन द कोजल ओशन और करना ओशन. ठीक है, अब इन्यूमरेबल यूनिवर्सेस निकाल दिए उन्होंने महत्त्व से. ठीक है, अब हर एक यूनिवर्स में कौन गया? गर्भोदक्षय विष्णु गए. ही इज द सेकंड पुरुष. ठीक है, when he saw that within the universe there was only darkness and space without a resting place, he filled half of the universe with water from his own perspiration. ये मैंने कल भी बताया था कि जब वो हर यूनिवर्स में जाते हैं तो सब कुछ, वो यूनिवर्स क्या होता है? अंधेरा है, खाली स्पेस है, कुछ नहीं है उसमें, सिर्फ बड़ा सा यूनिवर्स है, कुछ नहीं है. तो वो क्या करते हैं? उस यूनिवर्स को आधे पानी से भर देते हैं अपनी खुद की प्रेस्पिरेशन से, एंड ले डाउन हिमसेल्फ ऑन द सेम वाटर, और उसी वाटर पे ऐसे अपने महाविष्णु रूप में लेट जाते हैं. ठीक है, सो दिस वाटर इज कॉल्ड गर्भोदका. इस पानी को क्या कहा जाता है? गर्भोदका, और गर्भोदका ओशन यू कैन से. ठीक है, सो व्हाट डज दिस वाटर कॉल्ड? गर्भोदका. ठीक है, देन फ्रॉम हिज नेवल द स्टेम ऑफ द लोटस फ्लावर स्प्राउटेड. देखो कितनी ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन है, प्रभुपाद ने कितना डिटेल में हमें बताया है. हमें इस चीज के बारे में पता भी नहीं होगा कैसे कैसे क्या चीज हो रही है. इट्स सो वंडरफुल. ठीक है, सो भगवान जो सेकंड गर्भोदक्षय विष्णु थे, जो हर यूनिवर्स में एंटर करते हैं. ठीक है, जब वो यूनिवर्स में गए तो वो यूनिवर्स कैसा था? पूरा खाली था, पूरा स्पेस है, डार्कनेस है, अंधेरा है. तो उन्होंने उसको पानी से भर दिया आधा. किससे? अपनी खुद की परस्पिरेशन से. ठीक है, और उस पानी को क्या कहा जाता है? गर्भोदका. एंड ही लाई डाउन ऑन दैट, और वहां से उनकी नाभि से क्या निकलता है? लोटस फ्लावर स्प्राउट होता है. एंड ऑन द फ्लावर पेटल्स द बर्थ ऑफ ब्रह्मा और द मास्टर इंजीनियर ऑफ यूनिवर्स प्लान टुक प्लेस, और वहां पे ब्रह्मा जी पैदा होते हैं. ठीक है, तो ही इज कॉल्ड, ही इज नाउन एज द नेम, मुझे नाम भूल चुका है कि इनके माता पिता नहीं, ही वाज जस्ट फ्रॉम द फादर ही वाज कमिंग. सो देखो भगवान को स्त्री की जरूरत नहीं है टू लाइक हैव द यूनियन एंड हैव द चाइल्ड.
by Lord by, and देखो अपनी नाभि से ही he can create the jivas. So from his navi came the lotus, and from there Brahma ji came. ठीक है. So Brahma became the engineer of the universe. अब वो engineer बन गए universe के, and the Lord himself took charge of the maintenance of the universe as Vishnu. ठीक है. तो अब क्रिएशन का भार किसने संभाला? ब्रह्मा जी ने. ठीक है. और मेंटेनेंस का भार विष्णु ने. वो विष्णु कौन से? शिरोदक्षय विष्णु है, जो मेंटेनेंस करते हैं ना, दैट इज शिरोदक्षय विष्णु, नॉट गर्भोदक्षय विष्णु, दैट इज शिरोदक्षय विष्णु. ठीक है. सो क्या बोला है? ब्रह्मा वाज जनरेटेड फ्रॉम रजोगुण ऑफ प्रकृति और द मोड ऑफ पैशन इन नेचर, एंड विष्णु बिकम द लॉर्ड ऑफ द मोड ऑफ गुडनेस. अब ब्रह्मा जी इंचार्ज हैं रजोगुण के. इसका मतलब ये नहीं कि वो खुद पैशन में है. He is the in charge of mode of passion. Similarly, Lord Vishnu, he is the in charge of mode of goodness, but he is above the goodness. वो ट्रांसेंडेंटल है, वो गुणों के अधीन नहीं है. ठीक है. He is not under the modes. Brahma, we can still say he can under the modes because he is a जीव आत्मा. जीव तत्व क्या है? वो गुणों के अधीन होता है. मगर लॉर्ड विष्णु, he is above the modes, though he is in charge of mode of goodness, but he is not under the mode, being transcendental to all the mode. He is always aloof from materialistic affection. ये हम लोगों ने कल भी देखा था कि जो विष्णु तत्व है वो हमेशा अलग होते हैं. This has already been explained. From Brahma there is Rudra, who is in charge in the mode of ignorance of darkness. अब ब्रह्मा जी के forehead से कौन निकले? रुद्र, शिवा. ठीक है. Actually there is a Sadashiv who remain his abode Maheshwara, वहां पे रहते हैं. तो he comes, ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा जी उनके पिता हैं. It's like कि he comes from, original father तो कृष्णा ही है, but it's like he comes from the forehead of ब्रह्मा जी. ठीक है. He took the form of Rudra and comes from the form of ब्रह्मा जी. सो ब्रह्मा जी जब अपने 4 कुमारों पे निराश हो चुके थे, उनको बोला कि गृहस्थी में जाओ, आगे प्रोजनी बढ़ाओ. तो 4 कुमार ने बोला नहीं भाई, हमें ब्रह्मचारी रहना है. तो ब्रह्मा जी गॉट वेरी एंग्री. He was very angry, and when he was angry, तो from his forehead comes रुद्र, शिवा. ठीक है. और वो किसके इंचार्ज बने फिर? मोड ऑफ इग्नोरेंस और डार्कनेस के. ठीक है. तो जो लोग तमोगुण में आते हैं उनके इंचार्ज कौन है? शिव जी. इसका मतलब ये नहीं कि जो शिवा है, रुद्र है, वो इग्नोरेंस में. नो, ही इज नॉट. ठीक है. एंड ही डिस्ट्रॉय द होल क्रिएशन बाय द विल ऑफ द लॉर्ड. देखो, भगवान की विल से डिस्ट्रक्शन होता है, भगवान की विल से क्रिएशन होता है. सो लॉर्ड शिवा, दैट सदाशिव, ही डज द डिस्ट्रक्शन एनहिलेशन, तांडव करके. तो उसके लिए भी ही गेट द पावर फ्रॉम संकर्षण. संकर्षण इज द incarnation of Lord Krishna. तो वो जो खुद से रुद्र cannot do the annihilation, he get the power from Sankarshana. ठीक है. So everything is coming from Lord. So that was there. ठीक है. So therefore all three, namely Brahma, Vishnu and Shiva, are incarnation of गर्भोदक्षाई विष्णु. ठीक है. So गर्भोदक्षाई विष्णु, ये तीनों कहाँ से आ रहे हैं? गर्भोदक्षाई विष्णु से आ रहे हैं. ब्रह्मा, विष्णु और शिवा. क्योंकि गर्भोदक्षाई विष्णु से पहले ब्रह्मा जी आए, फिर ब्रह्मा जी के फोरहेड से कौन आए हैं? रुद्र आए हैं, शिवा. ठीक है. और जो विष्णु, शिरोदक्षय विष्णु है, वो भी he comes from this शिरोदक्षय विष्णु comes from what we call the Hare Krishna. One second. Yeah. So this शिरोदक्षय विष्णु comes from गर्भोदक्षय विष्णु. ठीक है. तो ये तीनों कहाँ से आ रहे हैं? ब्रह्मा, विष्णु, महेश इज कमिंग फ्रॉम गर्भोदक्षय विष्णु. ठीक है. इतना क्लियर है? यहाँ पे कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? हरे कृष्णा. एनी कंफ्यूजन इन दिस? माता जी, विष्णु जो शिरोदीक्षाई विष्णु है वो कैसे आता है? मतलब लाइक जैसे ब्रह्मा जी तो उनके नाभि से आते हैं और शिव जी उनके हेड से आते हैं, तो शिरोदीक्षाई विष्णु ही जस्ट कम्स. उसकी डिटेल नहीं पता मुझे माता जी. अब जैसे करोदक्षय विष्णु से गर्भोदक्षय विष्णु आते हैं. जी ठीक जी है. जी, ठीक है. उस मतलब चेन है ये. ठीक है. सो शिरोदक्षय विष्णु से गर्भोदक्षय विष्णु आते हैं, देन गर्भोदक्षय विष्णु से करोदक्षय से गर्भोदक्षय, और गर्भोदक्षय से शिरोदक्षय विष्णु आते हैं. उनकी डिटेल नहीं बताइए माता जी, तो मुझे भी नहीं पता. जी माता जी, ठीक है. ठीक है. सो यू जस्ट अंडरस्टैंड कि ही इज कमिंग फ्रॉम देयर. ठीक है. ओके. सो व्हाट इज नेक्स्ट? जस्ट होल्ड ऑन. हाँ. और कोई डाउट है? एनी क्वेश्चन? माता जी, एक ना कंफ्यूजन और है. हाँ जी, हाँ जी. लाइक जैसे कभी किसी से बात करो ना, तो देवर टेलिंग कि नहीं शिव जी हैं. मतलब लाइक उसमें लिखा हुआ है ना शिव पुराण में कि हाँ जी, पहले हाँ. शिव जी आए, शिव जी ने विष्णु जी को वो किया. तो भाई मतलब उस पे ऐसा क्यों लिखा हुआ है? वो पुराना के हिसाब से माता जी उनको सुपीरियर बताया जाता है.
ठीक है। मगर आप अगर भागवतम पढ़ोगे, और भगवत गीता में भी बहुत बार लिखा है कि आई फॉरगॉट द, मुझे संस्कृत नहीं याद आ रहा श्लोका का, कि केवल कृष्णा और सब भरतरया, मीन्स द ऑल द डेमिगॉड्स दे आर द सबॉर्डिनेट ऑफ लॉर्ड, एंड लॉर्ड शिवा इज अ सबॉर्डिनेट। अब दुर्गा पुराण मतलब शिव पुराण है जैसे, वैसे दुर्गा जी का कोई होगा तो वहां पे उनको सुपीरियर बोला जाता है उन लोगों के लिए। अब जैसे देखो डिफरेंट पुराना है, डिफरेंट गुणों के लोग हैं, उनके हिसाब से डिफरेंट पुराना है, तो उस हिसाब से वहां पे उनको सुपीरियर बताया जाता है। मगर सबसे सुपीरियर है वो कृष्णा है। एक्चुअली जो शिवा है वो जीव तत्व नहीं माने जाते, ठीक है। ही इज इन द मिडल ऑफ विष्णु तत्व एंड जीव तत्व। देखो विष्णु तत्व कौन है? जो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। क्लियर है? इतना पता है पूजा जी माता जी आपको? ये पता है। विष्णु तत्व, जो भी विष्णु तत्व है वो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड है, ठीक है। अब भगवान के एक और पार्ट एंड पार्सल है जो जीव तत्व है, मतलब जीवास हैं, जैसे हम लिविंग बींग्स हैं, ठीक है। ब्रह्मा जी से जी लेके जितने भी डेमिगॉड्स या जितने भी हैं, दे आर ऑल कम्स अंडर जीव तत्व, ठीक है। तो वो भगवान के जीव तत्व हैं, चाहे वो इंपावर्ड भी हो, थोड़ी शक्तियां उनमें, मगर दे जीव तत्व, ठीक है। अब वो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड नहीं हुए ना, क्योंकि वो विष्णु तत्व नहीं है ना। अब ये जीव तत्व जी और विष्णु तत्व के बीच में एक तत्व आता है, डेट इज कॉल्ड शिव तत्व। जो लॉर्ड शिवा इन दोनों के बीच में आते हैं। ही इज नॉट टोटली ट्रांसेंडेंटल एंड ही इज नॉट टोटली जीवा। ना तो वो टोटली जीवा की कैटेगरी में आता है, ना ही टोटली वो विष्णु तत्व की कैटेगरी में आता है। ही इज अ मिक्सचर, इज अ मिक्सचर, बट ऑब्वियसली सुपीरियर टू जीव तत्व, कि जीव तत्व से सुपीरियर है, ठीक है। उनका अपना ही अबॉर्ड है। उनका जो अबॉर्ड है ना, वो भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के कहीं बीच में है। It is not totally into the material world, not totally into the spiritual world. It is in the middle. So Lord Shiva को obviously he has a superior thing. अब जैसे दूध और दही का उदाहरण दिया जाता है कि ब्रह्म संहिता में भी, कि जो शिव जी हैं वो एक तरह से दही है, ठीक है। दही के समान मतलब मान सकते हैं आप। और जो दही है वो आता कहाँ से? दूध से ही आता है, तो एक तरह का दूध का ही फॉर्म हुआ ना दही, है ना। जी मगर दही से क्या दूध निकल सकता है? नो नहीं निकल सकता ना। तो यही बात आती है कि फ्रॉम विष्णु कम्स लॉर्ड शिवा, मगर लॉर्ड शिवा से विष्णु नहीं आ सकते। बट ही हैज दैट सुपीरियर क्वालिटी, ही इज हैज दैट, ही इज अ मिक्सचर ऑफ ट्रांसेंडेंटल एंड, मतलब ही इज अबव द जीव तत्व, तो उनका पोजीशन अलग है, दैट इज सुपीरियर, ठीक है। सुपीरियर पोजीशन है उनका, तो दैट इज देयर। सो वो पुरानास के अकॉर्डिंग तो जैसे जैसा बोला जाता है, तो उस हिसाब से उस टाइम पे उसी को प्रियोरिटी दी जाती है, सुपीरियर बता जाता है, ठीक है। अब जैसे आप क्लासेस लगा लो, ठीक है। आप सपोज आप 12th क्लास में हो, मैं 11th में हूँ, आज से 10th में है। खैर हमारे स्कूल हो चुके हैं, बट आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, ठीक है। तो आप अपनी क्लास जी के इंचार्ज हुए ना पूजा माता जी, आप मॉनिटर हो अपनी क्लास के। जी अब 12th क्लास के जी इंचार्ज हो ना। अब मैं बोला तो जी मैं 11th क्लास की हुई, तो आज तक 10th क्लास की जी इंचार्ज हुई, तो वो उसकी मॉनिटर है ना। तो आप 12th क्लास की जी मॉनिटर हो, तो देखा जाए तो फिर हम में सुपीरियर कौन है? बट देखा जाए तो पूरे स्कूल का सुपीरियर कौन है? प्रिंसिपल, है ना। प्रिंसिपल प्रिंसिपल जी है ना। तो मगर जी अब क्लास के हिसाब से तो कोई बोले अरे 12th क्लास में तो बोला गया कि वो पूजा माता जी सुपीरियर है, वो ज्यादा डोमिनेटिंग, तो ऐसे कैसे फिर? आ रहा समझ में आ रहा है जी पॉइंट? जी जी समझ आ गया। वही चीज है यहाँ पे भी, ठीक है। तो पुराने के अकॉर्डिंग ऑब्वियसली उनकी स्तुति की जाती है, उनको सुपीरियर बताया जाता है। मगर जो मेन है, लॉर्ड शिवा खुद पार्वती माता जी को भागवतम सुनाते हैं और खुद बताते हैं कि ही इज अ वैष्णवानम यथा शंभु, लॉर्ड शिवा इज द ग्रेटेस्ट वैष्णवा, बट ही इज नॉट द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। बट तो इनके गुण हैं उस हिसाब से, ही इज अबव द जीव तत्व, मतलब उनका जो तत्व है वो थोड़ा अलग है। विल डिस्कस समथिंग मोर अबाउट लॉर्ड शिवा इन सम डिटेल, और मे बी टुमारो आई कैन टेल अबाउट दिस थिंग्स। बट किसी दिन बीच में ये टॉपिक लेंगे हम लॉर्ड शिवा के बारे में, उनकी पोजीशन के बारे में क्लियर करेंगे। बट ही इज अबव, ही इज कम्स अंडर शिव तत्व, ठीक है। अभी के लिए इतना जी माता काफी है। और कोई कंफ्यूजन है माता जी? नो माता जी ओके, आगे का पढ़ते हैं। So therefore all three, namely Brahma, Vishnu, Shiva, are incarnation of Garbhodaksha Vishnu, ठीक है। From Brahma the other demigods like Daksha, Marichi, Manu and many other become incarnated to generate living entity within the universe, ठीक है। अब ब्रह्मा जी ने क्रिएशन किया, अब आगे प्रोजनी भी बढ़ाना था, तो उनसे कौन कौन आए? दक्षा, मारीची, मनुज आए, जिन्होंने आगे इनकारनेट हुए ब्रह्मा जी से, जिन्होंने आगे यूनिवर्स में और क्रिएशन किया है, ठीक है। दिस गर्भोदक्ष विष्णु इज ग्लोरिफाइड इन द वेदास इन द हिम्स ऑफ गर्भ स्तुति, which begin with the description of the Lord as having thousands of head, ठीक है। तो ये गर्भोदक्ष विष्णु is glorified in the Vedas in the hymns of Garbha Stuti, which begin with the description of Lord as having thousands of head. The Garbhodaksha Vishnu is the Lord of the universe. देखो
अब ही इज द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, क्योंकि ये यूनिवर्स के अंदर है ना। अब कर्णोदक्षिणी तो यूनिवर्स के बाहर ही चले गए हैं, तो उनका तो आया नहीं सीन। तो यूनिवर्स के अंदर कौन है? फ्रॉम whom who enters the universe? गर्भोदक्षय विष्णु. So he is the lord of the universe, and although he appears to be lying within the universe, he is always transcendental. कोई बोल सकता है ये तो पता चलेगा यूनिवर्स के अंदर है, बट अंदर तो है, बट एक्चुअली ही इज लाइंग देयर, बट ही इज नॉट अंडर द यूनिवर्स लॉज, you know, he's above that because it's transcendental, but he is the lord of the universe. This also has already been explained. The Vishnu, who is the plenary portion of Garbhodakshay Vishnu, is the super soul of the universal life, and he is known as the maintainer of the universe or Shirodakshay Vishnu. तो मैंने क्या बोला कि जो जीवात्मा के अंदर जाता है, जो मेंटेन करता है, मेंटेनेंस कौन करता है? शिरोदक्षय विष्णु करते हैं, ठीक है। दो यूनिवर्स के लॉर्ड कौन है? गर्भोदक्षय विष्णु, मगर मेंटेनेंस कौन कर रहा है? शिरोदक्षय विष्णु करते हैं, ठीक है। सो द थ्री फीचर्स द ओरिजिनल पुरुषा आर दस अंडरस्टूड, ठीक है। तो इन तीनों में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, इन तीनों का क्लियर है। हरे कृष्णा, ये तीनों विष्णु का क्लियर है, तीनों पुरुषा जी का, माता जी। है ना। जी। And all the incarnation within the universe are emanation from the शिरोदक्षय विष्णु। तो अब जितनी भी इनकारनेशन आगे की होंगी यूनिवर्स में, वो कहां से आएंगी? शिरोदक्षय विष्णु से आएंगी, ठीक है। In different millennium, there are different incarnations and they are innumerable, although some of them are very prominent. तो क्या बोला गया है? कृष्ण। So क्या बोला गया यहाँ पे? In different millennia, there are different incarnation and there are innumerable, although some of them are very prominent, such as Matsya, Kurma, Varha, Rama, Nrsimha, Vamana and many others. अब भगवान ने, जैसे हमने बोला था कि समय काल परिस्थिति के अनुसार, या जैसे भगवत गीता में आता है यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर, तो भगवान अवतरित होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इनकारनेशन लेते हैं, ठीक है, समय के अनुसार उस समय क्या सिचुएशन है या कौन से अवतार की जरूरत है। सो लॉर्ड टेक्स, बट देयर आर मेनी इनकारनेशंस ऑफ लॉर्ड, मगर जो प्रोमिनेंट है वो कौन सी हैं? जैसे मत्स्य, कूर्म, वराह, जैसे दशावतार की बात आती है तो दशावतार मेन गिने जाते हैं, तो उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दीज इनकारनेशन आर कॉल्ड लीला अवतार, ठीक है। लीला इनकारनेशन इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैसे मत्स्य अवतार थे जो मीन मछली का लिया था, कूर्म अवतार है, वराह देव धरती को उठाया था रसदल से, लॉर्ड रामचंद्र आइडियल ह्यूमन बीइंग, नरसिम्हा देव हिरण्यकशिपु, वामन देव, ठीक है। तो इनको क्या, इनको लीला परफॉर्म किया ना इन्होंने, सम पास टाइम दे परफॉर्म्ड, इजंट इट। तो इन्होंने क्या किए थे? कुछ पास टाइम्स परफॉर्म किए, जैसे रामचंद्र का है रावण को मारा, नरसिम्हदेव हिरण्यकशिपु को मारा, ठीक है। अपने भक्त प्रहलाद, वामन देव जी थे, बलि महाराज का स्टोरी था उसमें। सो दे हैव परफॉर्म सम लीलास। तो ये जो अवतार है दशावतार, ये कौन से इनकारनेशंस है? लीला इनकारनेशंस, ठीक है। So then there are qualitatively incarnations such as Brahma, Vishnu and Shiva. तो there are called गुण अवतार। अब ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश कौन से हैं? गुण अवतार हैं। कौन से हैं? These are the modes of, they are the different modes of material nature. They take charge of different, they are the गुण अवतार, लीला अवतार, गुण अवतार। आया समझ में? Now next, ये भी incarnation ही है भगवान की, ठीक है। Next is Lord Vishnu is not different from the personality of Godhead. Lord Shiva is in the marginal position between the personality of Godhead and the living entity or जीवा। ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि is the middle, बीच में है वो, जीव और विष्णु तत्व के बीच में आते हैं। So ब्रह्मा is always a जीव तत्व, तो ब्रह्मा जी हमेशा जीव तत्व ही हैं। मैं आपको बता दूं, जब हम लोगों का फॉल डाउन होता है ना भौतिक जगत, सॉरी मटीरियल स्पिरिचुअल वर्ल्ड से, तो पहली पोजीशन हमें जो मिलती है वो ब्रह्मा जी की ही मिलती है, ठीक है। आप देख लो ब्रह्मा जी का भी फॉल डाउन होता है, हम लोग है ना इधर तो ब्रह्मा जी ऑल्सो फॉल्स डाउन, ठीक है। सो वी आर इनटू द फर्स्ट लिविंग बीइंग, एज अ वी फर्स्ट बर्थ हमारा एज अ ब्रह्मा ही होता है, ठीक है, जो हमें तो अभी याद नहीं। सो ही इज अ टोटली जीव तत्व, ये टोटल जीव तत्व है, ठीक है। The highest pious living being or the greatest devotee of the Lord is empowered with the potency of the Lord for creation and he is called Brahma. अब जो क्रिएशन का भार संभालते हैं पायस, अब जो ब्रह्मा जी की पोजीशन है वो पता है किसको मिलती है? रिक्वायरमेंट, क्वालिफिकेशन क्या है? जिसने 100 जन्मों में कोई पाप ना किया हो, पिछले 100 जन्म में कोई भी सिन ना किया हो, दैट पर्सन इज क्वालिफाइड टू बिकम ब्रह्मा। और भी क्राइटेरिया होता होगा, बट ये भी क्राइटेरिया है, ठीक है। सो ही इज लाइक अ पायस लिविंग बीइंग, हाईएस्ट पायस लिविंग बीइंग बोला ना, कि मतलब 100 जन्म में कोई पाप नहीं किया। सो दैट पर्सन इज गिवन द पोजीशन ऑफ ब्रह्मा। तो ब्रह्मा क्या है? पोजीशन है, नाम नहीं है। ब्रह्मा जी पोजीशन है। अब जैसे सूर्य देव है, तो जो सूर्यदेव अभी हैं उनका नाम विवस्वान है, ही इज द सूर्य नाउ, ठीक है। सूर्य इज अ पोजीशन, तो ब्रह्मा इज अ पोजीशन, इंद्र इज अ पोजीशन, इट्स नॉट द नेम। पौंड्रा इज राइट नाउ, नहीं मुझे पौंड्रा नहीं, हु इज द टेकन द पोजीशन ऑफ इंद्र, आई विल टेल यू।
बाद में बताऊंगी आपको, मुझे याद नहीं आ रहा। तो उसमें ब्रह्मा इज अ पोजीशन, ठीक है। तो किसको दी जाती है? हु इज अ पायस लिविंग बीइंग, ग्रेटेस्ट डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, ही इज गिवन द पोजीशन ऑफ ब्रह्मा। और जब कोई क्वालिफाइड नहीं होता है तो भगवान खुद ब्रह्मा जी की पोजीशन ले लेते हैं, ठीक है। So his power is like the power of the sun reflected in valuable stones and jewels. When there is no such living being to take charge of post of Brahma, Lord himself become a Brahma and take charge of the post. तो जब कोई ब्रह्मा लाइक क्वालिफाइड नहीं होता तो भगवान स्वयं ही उनकी पोजीशन ले लेते हैं, ठीक है। आगे क्या बताया? सो लॉर्ड शिव इज नॉट एन ऑर्डिनरी लिविंग बीइंग, तो जो शिव जी हैं वो कोई ऑर्डिनरी लिविंग बीइंग नहीं है, ठीक है। He is the plenary portion of the Lord, but because Lord Shiva is in direct touch with material nature, he is not exactly in same transcendental position as Lord Shiva. अब जो Lord Shiva है वो भौतिक जगत के टच में भी है मटेरियल नेचर के, ठीक है, और प्लेनरी पोर्शन भी है भगवान के, तो इसीलिए ही इज इन द मिडल। जैसे मैंने बताया कि दूध और दही का जो अंतर है, सो यू ऑल कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर, ठीक है। सो ये पुरुष अवतार्स के बाद में अब जो इनकारनेशन नेक्स्ट आती है वो कौन सी है? मनुज की इनकारनेशन, ठीक है। 3 पुरुष हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए। अब नेक्स्ट इनकारनेशन कौन सी है? मनुज की, ठीक है। मनुज की इनकारनेशन आती है। शेल वी कंटिन्यू टुडे और शेल आई गिव द डिटेल टुमारो? हरे कृष्णा, क्योंकि 8:40 हो रहे हैं। इसको आज पढ़ना है कि कल कंटिन्यू करें? थोड़ा सा लंबा है, तो विल टेक अप दिस टॉपिक टुमारो। मनुज की इनकारनेशन हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। सो अभी के लिए एनी ऑफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स, सो प्लीज गो अहेड, कल ही पढ़ेंगे, ठीक है। सो अभी के लिए कोई प्रश्न है किसी का? यस पूजा माता जी। माता जी प्रश्न तो नहीं है, वो मैं बस अब ये बोलती कि कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी सिर के ऊपर से तो नहीं चला गया? कुछ समझ में आया? नहीं माता जी बहुत अच्छा, मतलब एक्चुअली ना मैं खुद से पढ़ रही थी, तो ये भागवतम 6 चैप्टर पे थी, बट मेरे को कभी इतना समझ में ही नहीं आया जितना सुन के समझ आ रहा है ना, तो मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा खुद से पढ़ने का। मेरे को जितना कभी इतना समझ में नहीं आया जो अभी अभी समझ आ रहा है सुन के। वही माता जी, एक्चुअली हम लोग पढ़ते तो हैं, तभी कहा जाता है कि हमें भक्तों के संग में पढ़ना चाहिए, कि ताकि हमें ये चीजें समझ में आ सके। क्योंकि मुझे याद है जब मैंने भगवत गीता मुझे जब मिली थी तो मैंने पढ़ना, एक तो मुझे मिली हिंदी में थी, अब हिंदी मेरी इतनी स्ट्रांग नहीं है, मतलब पढ़ने में वो हिंदी मुझे नहीं समझ में आती। तो जब दी थी तो मैंने पढ़ती तो मैं डेली बेसिस पे थी, मगर मुझे समझ कुछ नहीं आता था। सो उसके बाद में जब भक्तों के संग में आए तो उनसे जब सुना तो तब उसकी रियल अंडरस्टैंडिंग आई। तो अभी तो आई माई सेल्फ टीच भगवत गीता, बट दिस इज ओनली बिकॉज आई हैव हर्ड फ्रॉम द डिवोटीज, तो इसलिए उस चीज की क्लियर अंडरस्टैंडिंग है, या समझा पाते हैं या बोल पाते हैं। तो इसलिए ये जो भागवतम है, भगवत गीता है, वी रिलिश मोर इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। एक बार हम समझ लेते हैं, फिर हम जब खुद से भी पढ़ते हैं, प्रयास करते हैं, तो हमें समझ में आता है, ठीक है। सो वो नहीं है, बट ये कि हमें भक्तों से श्रवण करना चाहिए, उनके संदिग्ध में सुनना चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए, कुछ नहीं क्लियर है, सो दैट्स हाउ वी कैन हैव द अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड इन दैट वे। सो दैट्स वेरी गुड, आपको भी समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो बाकी रिगार्डिंग लॉर्ड शिवा, आई माइट टेक अप द क्लास टुमारो और मे बी इन सम डेज, सो आई विल टेल मोर अबाउट लॉर्ड शिवा, ठीक है। उनके बारे में पोजीशन पूरा क्लियर करेंगे। सो बाकी अभी के लिए मनु इनकारनेशन विल स्टडी टुमारो, ठीक है। अभी का होप एवरीथिंग इज क्लियर। सो अगर कोई आप दोबारा इसको पढ़िए, ठीक है, ये जो चैप्टर हम लोग श्लोका पढ़ते हैं इसको दोबारा से खुद पढ़ा करो, कि अगर बीच में कोई चीज नहीं समझ में आती, सो दैट यू कैन inquire further, ठीक है। that is the proper way of understanding or learning the shastra. It's not just go अच्छा सुन लिया, हाँ ठीक है, we have to read it ourselves and try to understand, ठीक है। so all fine, okay पूजा माता जी? जी माता जी। okay Asa, do you have anything? why you are so late today? you were sleeping? नो माता जी, वो क्लास ही लेट हो गई थी सुबह वाली। okay but वो you मंडे संडे और मंडे क्लास होती है ना, तो वो आज कल इतना लेट हो गया कि मुझे नहीं पता था वो 2.5 घंटे की क्लास चली गई। You missed the major part today because today were the very important points, so you missed it out. So maybe you can listen the recording, so that will be there. If possible, do listen because it's a very important points are there. समझ में आना चाहिए, या तो खुद पढ़ो, ठीक है। So try to understand. Okay, any questions from your side, Asta? सुना ही नहीं तो क्वेश्चन कैसे होंगे माता जी? पूरा So नहीं try to सुना। listen to the recording then, okay? यस। Okay then, so let me end up now. So we'll see you all in the Bhagavad Gita class, so please don't miss. So let's chant 3 times Hare Krishna.
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Tantra Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, all the symbol devotees ki jai. Thank you so much. See you all in the evening Bhagavad Gita class. Hare Krishna everyone. Hare Krishna.